Hello everyone, welcome to the channel and welcome to the very first class of your history syllabus, the rise of nationalism in Europe. Okay, so first of all we have painting of Frederick Sorio in the beginning of the chapter. Okay, this painting is the dream of the painter for a democratic and social republic nations. Okay, that was a vision for most of the nationalists at that time. Okay, so this painting shows the vision of the painter about liberty, about freedom, about a nation with equal rights for all its citizens, maybe may it be man or may it be woman. Okay, so the painting shows the people of Europe and America, man and woman of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty. इस पेंटिंग में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सारे man and woman, both man and woman are there. Okay, is painting में both man and woman are there. Same man, woman, and of all classes. You can just see them by their dresses, by their costumes. Okay, the class or different classes, different man and woman of different classes, and all are marching towards the Statue of Liberty. That means they are marching towards freedom. They're marching towards liberty. Okay. The Statue of Liberty is personified as a female figure and is holding lamp of enlightenment on one hand and charter of rights of man in the other. So the Statue of Liberty जो यहाँ पे middle में है, what is she representing? She is representing the democracy, the republic, the idea of being equal. Okay, she's holding lamp of enlightenment on one hand. That means when citizens will get when people जब लोगों को मिलेगी आज़ादी, ठीक है, लोगों को मिलेगा डेमोक्रेसी, when people will get democracy, they will get republic, their own republic nations with equal rights. What will they get? They will get enlightenment. Okay, there will be development. Okay, इसलिए यहाँ पे एक हाथ में उनके पास lamp of enlightenment है, and on the other hand she is holding rights of man, charter of rights of men. Okay, that means which is representing the rights which the citizens will get after being independent, after getting their own republic nations. Okay, on the earth lay ruin of symbols of absolutist institutions. The picture shows the people grouped as distinct nations identified through their flags and their costumes. यहाँ पे लोगों को क्या दिखा रहा है? They are united. Okay, all the people united and you can only find them by their costumes and their flags. लोग यहाँ पे सिर्फ अपने costume और flag से represent कर रहे हैं, but सारे united है किस चीज के लिए? आज़ादी के लिए, liberty के लिए, democracy के लिए, सब यूनाइटेड हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो लिबर्टी जो है फेमिनिन फिगर से रिप्रेजेंट की गई है. ठीक है, वो क्या दिखा रही है कि लोग यूनाइटेड है फॉर लिबर्टी एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स लिबर्टी. ओके, leading the position the way past the Statue of Liberty are United States and Switzerland, which were already nation states. By then France had just reached the Statue of Liberty, followed by Germany, Austria, Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland. तो फिर वो यही बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स उस समय तक, जब ये पेंटिंग बनी थी उस समय तक वो दोनों रिपब्लिक स्टेट्स बन गए थे. तो वही वो बोल रहा है कि वो दोनों जो है वो उसको पास आउट कर चुके हैं. ठीक है, वो उसे पास कर सके हैं. ठीक है, तो that means they have already acquired liberty, they have already acquired independence. ठीक है, they have already acquired democracy, they have already got their liberty. Okay, तो France has just reached the Statue of Liberty, उसे just अभी उनको मिला है. ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे कि हमारी उसके बाद आ रही है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, ये सब और यूरोपियन स्टेट्स जो हैं, फर्दर यूरोपियन स्टेट्स आर फॉलोइंग देयर लीड एंड दे आर मूविंग बिहाइंड देम. वो भी आगे आगे आ रही है, उनके पीछे पीछे चलते आ रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह. ठीक है, लिबर्टी की तरफ. ठीक है, from the heaven gaze the Christ, the angels and the saints. They have the used symbolized fraternity and brotherhood among the nation of the world. ठीक है, तो नीचे जो है सबसे पहले हमारे ruins हैं किसके? जो एब्सोल्यूटिस्ट, हमारे जो मोनार्की के एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके जो सिंबल है, जैसे कि हमारे क्राउन हो गया, वो सब नीचे ruin पड़ा है. दैट मीन्स
they don't have any use now. Okay, people have got their own liberty, and now citizens are their own master. People are their own master of the nations. The people will run the nation, so they don't need any monarchs, they don't need any crowns. Okay, और ऊपर में जो हेवन में जो गॉड हमारे गॉड हमारे क्राइस्ट देख रहे हैं, हमारे सेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है कि ये लोग जो पेंटर है उसने इसलिए इन्हें यूज किया है, उन्हें बनाने के लिए फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड लोगों में दिखाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए किया है कि डेमोक्रेसी से लोगों में क्या आ गई है, एकजुट की भावना, दे आर गेटिंग यूनाइटेड। ओके, ठीक है। तो सिंपली ये पेंटिंग एक विजन है जो उस समय की, जो 1848 के टाइम पे जो यूरोपियन स्टेट्स में एक विजन आ रहा था सब लोग की, हम सब बराबर होंगे, ठीक है, हम सब में वी ऑल विल गेट आवर ओन लिबर्टी, वी विल हैव आवर रिपब्लिक स्टेट्स व्हिच वुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एवरीवन विल हैव इक्वल राइट्स, एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, एवरीवन विल हैव इक्वल थिंग टू प्रैक्टिस। ओके, ठीक है, सबको इक्वल माना जाएगा, ठीक है। उस समय का जो विजन था उसको पेंटर ने अपनी पेंटिंग में पूरा ले डाउन कर दिया गया, ठीक है। तो उस समय जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी उसके अकॉर्डिंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो फेमिनिन फिगर था उसको उस समय लिया जा रहा था रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडिया ऑफ जो लिबर्टी थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ले रहे थे, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूरोपियन कंट्रीज में लिया जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पे पेंटर ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को डिपिक्ट किया, ठीक है। उसमें उनके एक हाथ में इनलाइटमेंट दी है जिससे वो दिखाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी से लोगों में इनलाइटमेंट आई है, और दूसरे में लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इसलिए उन्होंने एक हाथ में चार्टर पकड़ रखा है मैन के राइट्स का, ठीक है। उस समय जो स्टेट्स जिस स्टेट्स मार्च कर रही है वो ये दिखाना चाह रही है कि लोग धीरे धीरे लिबर्टी की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम की ओर, रिपब्लिक नेशंस की ओर मूव कर रहे हैं कुछ धीरे धीरे नेशंस, ठीक है। और इनके रूइंस जो एब्सोल्यूटिस्ट जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनके रूइंस है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी अब जरूरत नहीं है, दे हैव बीन फिनिश्ड, ठीक है। तो और ऊपर से जो गॉड्स और सेंट्स को दिखाया गया है उससे वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड, ठीक है, लोगों के बीच में जो एकजुट की भावना, जो यूनाइटेड फीलिंग जो इसकी वजह से आ रही है वो दिखाना चाह रहा है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर विद द चैप्टर द आइडिया ऑफ द नेशन। ओके, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, whenever we talk about democracy, okay, first we begin with French Revolution of 1789। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक आइडियाज हमारे जो निकले थे, ठीक है। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे सामने, हमारे दिमाग में आना चाहिए। ओके, तो द चैप्टर बिगिंस विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसकी वजह से जो नेशन स्टेट क्या होता है, एक नेशन क्या होता है, उसके लिए जो आइडियाज प्रोड्यूस हुए, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, the first clear expression of democracy began with the French Revolution in 1789 France. Okay, French was an absolute monarch at that time, but French Revolution led to transfer of sovereignty from monarch to the body of citizens. The revolution proclaimed that henceforth it would be people who would shape the nation and its destiny. Okay, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था इससे पहले एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, ऑल द राइट्स, ऑल द पावर, सब कुछ मोनार्क के पास थे, ठीक है। बहुत सारे टैक्सीज, बहुत सारे ड्यूज जो थे लोगों को देने पड़ते थे, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में बंटे हुआ था फ्रेंच, ठीक है ना। तो जो अलग अलग स्टेट्स में बंटा हुआ था, जो पीजेंट्स वगैरह थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्हें सेकंड स्टेट को टैक्सेस देने पड़ते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उस समय जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ही डिफरेंट थी, ठीक है। लोगों को बहुत अप्रेस्ड फील हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। और जिस वजह से क्या हुआ, जो मोनार्की के हाथों से लोगों तक उनकी जो सोवेरेंटी थी, लोगों के पास पावर पहुंच गई, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू बॉडी ऑफ सिटीजन्स। ओके, तो उसके बाद लोग ही थे, लोगों ने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया कि अब से भाई हम ही अपना नेशन बनाएंगे, एंड वी विल डिसाइड इट्स डेस्टिनी, हम ही इस देश के शेप करेंगे और हम ही इसके देश का डेस्टिनी है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बहुत सारे नए नए आइडियाज, नए नए मेजर्स क्रिएट किए,
है, जैसे कि फादरलैंड, ले सितोयन, लो पैत्रे, ठीक है। ये सब टाइप के जो बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ जो है लोगों के दिमाग में क्रिएट किए कि हम सब सिटीजन हैं एक नेशन के, ठीक है। ये हमारा फादरलैंड है, ये हम जैसे हम बोलते हैं ना यही हमारी मातृभूमि है, वैसे उनका वो बोलते हैं कि उनका फादरलैंड है वो, ठीक है, वो हम इनके सिटीजन हैं, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उन्हें ये सब आइडियाज़ दिए, ठीक है, और उन्हें एक यूनाइटेड नेशन, एक यूनाइटेड कम्युनिटी की फीलिंग जो है उनके अंदर इंक्रीज करी, ठीक है। एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया उन्होंने, जो ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है फ्रेंच का वो, ठीक है। जो पुराना जो हमारा जो उनका पुराना जो रॉयल स्टैंडर्ड था, पुराने रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके नया फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने बनाया। स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। एक स्टेट्स जनरल उस समय उन्होंने फिर इलेक्टेड बॉडी बनाई, वो बॉडी इलेक्टेड थी, ओके। इलेक्टेड मतलब उसमें कुछ जो लोग जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने इलेक्ट किए अपने में से रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। वो स्टेट्स जनरल में बैठे, ठीक है, और फिर उस जो बॉडी को नाम दिया उन्होंने, उनका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली नाम रखा, ठीक है। नए नए गीत, नए नए पोएम्स, ठीक है, नए नए ओथ्स लिए गए, ठीक है, सब देश के नाम पे, सब नेशन के नाम पे, ठीक है। ये सब लोगों को क्या करते थे, मोटिवेट करते थे टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। Central administrative system was put in place and uniform laws for all the citizens throughout the territory, ठीक है। जो टेरिटरी थी, टेरिटरीज में छोटे छोटे रीजन्स थे, सबकी अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है, अलग अलग कस्टम्स, सब कुछ अलग अलग था, लेकिन एक यूनिफॉर्म, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, पूरी टेरिटरी में सब सेम लॉज होंगे, ठीक है, ये सेम ड्यूज होंगे, जो टैक्सेस होंगे सब सेम होंगे, ठीक है। वेट्स और मेजर भी उस समय जो था अलग अलग एरिया में कोई कोई मेजर वेट का मेजर यूज कर रहा था, कोई कुछ यूज कर रहा था, ठीक है। बट उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट सेटअप हुई उसमें उसने क्या अप्रिशिएट किया, पूरी टेरिटरी में सिमिलर यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर को अडॉप्ट किए गए, ठीक है। ये सब फ्रेंच जो टेरिटरी ली गई थी उसमें भी बहुत सब अलग अलग सब बोले जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो सबको यूनाइटेड रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अप्रिशिएट किया कि जो फ्रेंच, जो पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती थी उसे कॉमन लैंग्वेज माना, और जो लोकल जो डायलेक्ट्स थे जो लोग छोटे छोटे बोले जाते हैं उसको डिस्करेज किया गया, ठीक है। The revolutionaries declared that it was their responsibility to free the people of Europe from despotism or to help them become nations, ठीक है। फिर खुद फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो पॉजिटिविटी आई, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो उनको जो पॉजिटिव डेवलपमेंट मिली उससे उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें लगा कि जो रिवॉल्यूशनिस्ट को लगा कि उन्हीं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के यूरोप को भी इस ऑपरेशन से, ठीक है, उससे छुटकारा दिलाना और उन्हें भी नेशन बनाना उन्हीं रिवॉल्यूशनरीज की ही जिम्मेदारी है, उन्हें ऐसा लगा। When the news of events in France reached the cities of Europe, students and activists began Jacobin clubs. This paved the way for French armies, which moved from Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s. With revolutionary wars, French armies began to carry idea of nationalism abroad. ठीक है, जब फ्रेंच ने तो एक तो सोच लिया था कि उन्हीं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के यूरोप को जो है फ्री करवाना इस ऑपरेशन से, ठीक है। बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की से जो जो सब आउटकम आया, ठीक है, उससे जो जब वो बाकी सिटीज में पहुंची यूरोप की, तो जो स्टूडेंट्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, ठीक है, जो ये सब समझ सकते थे, वो भी अवेयर हो गए और उन्होंने भी अपना जैकोबिन क्लब बना दिया, क्योंकि वो भी अपने नेशंस के लिए वो भी यही चाहते थे, उन्हें वो भी एक रिपब्लिक नेशन चाहते थे, वो भी एक डेमोक्रेटिक नेशन चाहते थे, ठीक है। तो इसी वजह से फ्रेंच आर्मी जो है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड 1790s में वो इटली तक मूव करी थी, ठीक है। इन रिवॉल्यूशनरी वार से फ्रेंच आर्मी जो है नेशनलिज्म का जो आइडिया था, ठीक है, कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए जिसमें ऑल द पीपल शुड बी इक्वल, ठीक है, सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए, एवरीवन शुड बी अबाइडेड बाय इक्वल लॉज, ठीक है, ये वाले जो नेशनलिस्ट आइडियाज थे, ठीक है, ये सबको वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रेंच आर्मी जो थी अब्रॉड, यानी कि अपनी नेशन से बाहर सब पहुंच जाने लग गई थी बाकी यूरोपियन स्टेट्स में। जैसे जैसे ये जो रिवॉल्यूशन से 1830 से 1848 में जो रिवॉल्यूशन का जो एज आ गया, ठीक है, और लोगों ने अपने लिबर्टी के लिए कैसे लड़ना शुरू किया,
अब हम वो देखेंगे। ओके, तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव डिजाइन जो हो गया हमारा बहुत स्ट्रांग होता गया, ठीक है, तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आइडिया वो भी स्ट्रांग होते गए, ठीक है। जो यूरोपियन रीजन्स में जो इटालियन और जो जर्मन स्टेट्स थे, ठीक है, यूरोप के जो जर्मन और इटालियन सिटीज थे जो उस समय ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, ठीक है, वो भी क्या होने लगा, वो भी उसमें भी रिवॉल्यूशंस होने लगे। दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय लिबरलिस्ट, जो उस समय जो मिडिल क्लास एलिट थे, जैसे कि प्रोफेशनल्स, टीचर्स, स्कूल टीचर्स, जो क्लर्क्स थे, ठीक है, जो कमर्शियल मिडिल क्लास जैसे कि बिजनेसमैन वगैरह थे, वो सब ये लिबरल नेशनलिस्ट बन के, ठीक है, इस रिवॉल्यूशन में जोरों शोरों से हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। सबसे पहला जो फ्रांस में ये अपीवल दिखा गया इस कंजर्वेटिज्म के खिलाफ, वो था जुलाई 1830 में, ठीक है। बॉर्बन किंग्स who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionists who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head, ठीक है। तो जो बोर्बन फैमिली जो फिर 1815 की जो कंजर्वेटिव रिजाइम के टाइम पे आई थी, ठीक है, उस बोर्बन फैमिली को फिर दोबारा से हटा दिया गया, ठीक है। और फिर जो लुइस फिलिप जो है वो हेड बन गया, और ये जो लिबरल जो रिवॉल्यूशनरीज थे उस टाइम के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी, कि मोनार्की बट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो और उसके हेड में कौन थे, लुइस फिलिप, ठीक है। तो मेटरनिच जो था, ठीक है, जो हमारे जो वेनावे के टाइम पे जो हमारे चांसलर बने थे, उन्होंने कहा कि जब फ्रेंच स्नीज करता है तो पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम पड़ जाता है, ठीक है। मतलब जो फ्रेंच करता है वो पूरा का पूरा यूरोप करने लगता है, ठीक है, पूरे के पूरे यूरोप को असर होता है उससे, ठीक है। तो जुलाई का जो रिवॉल्यूशन था उससे क्या हुआ, ब्रुसेल्स में भी एक चिंगारी छिड़क गई, ठीक है, जिससे क्या हो गया, बेल्जियम जो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ जो हमने पढ़ा था कि बिना जो ट्रीटी में जो बेल्जियम को नेदरलैंड्स में ऐड कर दिया, तो बेल्जियम ने अपने आप को नेदरलैंड से अलग कर दिया, ठीक है। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence. और फिर एक और इवेंट हुआ जिसमें ये नेशनलिस्ट फीलिंग जो है यूरोप का जो यूरोप में जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ, जो ग्रीस में जो ग्रीक का जो वार हुआ इंडिपेंडेंस का, वो भी इन्हीं आइडियाज की वजह से हुआ, ठीक है। ग्रीक जो था ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15वीं सेंचुरी से, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ एक स्ट्रगल की जो चिंगारी जो थी ग्रीक्स के अंदर भी, यूरोप में जो रिवॉल्यूशनरी जो इंसिडेंट इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है, उससे क्या हुआ कि ग्रीक में भी इंडिपेंडेंस की एक स्ट्रगल की होप आ गए, उनमें भी एक होप आ गई, और वो भी रिवॉल्यूशन करने लगे, ठीक है। ग्रीक में 1821 में ये आज़ादी की उनका जो स्ट्रगल है उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल, जो उस समय जो ग्रीक्स बहुत सारे ग्रीस में जो भी नेशनलिस्ट रह रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे ग्रीक्स को एग्जाइल में भेज दिया था जस्ट बिकॉज कि वो ये रिवॉल्यूशन कर रहे थे, वो लिबरल आइडियाज ला रहे थे, ठीक है। तो वो सब जो भी एक्साइल में थे वो, और जो ग्रीस में जो नेशनलिस्ट थे वो सब मिल के, और ऑल्सो वेस्टर्न यूरोप में भी बहुत सारे जो लोग थे जो ग्रीक कल्चर के प्रति बहुत सिंपैथाइज थे, ठीक है, सब ने ग्रीस की मदद करी, ठीक है। और जो पोएट्स और आर्टिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन के लिए जो ग्रीस ने जो सब किया है, ठीक है, वो सारे आर्ट आर्ट को वो हाईलाइट करने लगे, ठीक है। और मोबिलाइज्ड पीपल्स ओपिनियन टू, और लोगों की जो, इससे क्या हो गया, जब भी पेंटिंग्स पिक्चर्स लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, तो इससे लोगों को उन्होंने जो मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट जो है अपने सपोर्ट के लिए लड़ने को क्या किया, उनको एनकरेज किया, ठीक है। तो इंग्लिश पोएट जो थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने अपने फंड्स ऑर्गेनाइज किए, और फिर उसके बाद वो इसी वॉर में फीवर से मर गए 1824 में, बट इसी स्ट्रगल की वजह से, इसी फाइनल उनके रिवॉल्यूशन की वजह से फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में 1832 को ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया, ओके। सो we will proceed further in part 2 of the video, okay। तो इस चैनल में हम बेसिकली वी विल बी कवरिंग एनसीईआरटी सिलेबस, और ठीक है, तो एनसीईआरटी सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री का हमने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो पार्ट 2 में डू वॉच द पार्ट 2, डू लाइक, share and subscribe the video for more